Haryana, the land of paradoxes, brimming with talent, produce and spirit. A land bursting with pride, yet a pride that lives in its deeply entrenched caste and gender fault lines. It's a state that I love. It's a state that also gets under my skin. It's a state I can't criticize because it is my state. It's where I come from, and this election hasn't just taken me back to Haryana, but also back to my home city, Rohtak. Rohtak, the nerve center of Haryana's politics. Of all the 10 seats, the true battle for Chaudrahat or Mooch is fought here. रोहतक में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर है पूरी तरह से, न केवल रोहतक के अंदर बल्कि पूरे हरियाणा के और पूरे भारत के अंदर। भाजपा सरकार से लोग तंग हो चुके हैं, बिजली, पानी, सीवरेज, ये समस्या इतनी पीक गर्मी में ये सब चल रहा है, तो उससे लोग बहुत त्रस्त हैं इसके अंदर। रोहतक में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत भारी मार्जिन से जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसमें एक कमल रोहतक का भी खिलेगा। अब की बार हरियाणा में हुड्डा सरकार और ये लोकसभा की 10 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन को। जो हमारे बेटे हैं वो सारे हंड रहे बेचारे, इतने पढ़े लिखे, उनको ना तो कोई नौकरी दी है ना कुछ किया इन्होंने। और कांग्रेस के राज में हमारे बेटे भी नौकरी कर रहे थे, हमारी बेटियां भी पढ़ लिख के आज इतने बड़े बड़े जो हॉस्पिटल बने हुए हैं ये कांग्रेस के राज में बनी थी। कांग्रेस को करा और किसने करा, रास्ता तो हमारा ये रोक कहीं न वोट दे दे, हमने मरना है। बच्चे पढ़े लिखे बैठे हमारे तो फार्म निकालते हैं, फार्मों को कदे रद्द कर देते हैं, कदे वो भर्ती कैंसिल कर देते हैं। मोदी ने करा क्या है? मेरे को इससे लड़वा दिया, उसको उससे लड़वा दिया, उसको उससे लड़वा दिया। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, और उसके अलावा इसके पास था क्या? धारा 370, आयुष्मान और ये राम मंदिर, जितने काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं शायद ही किसी ने किए होंगे। जो काम बीजेपी के राज में शायद देश के हित में हुए हैं वो कांग्रेस के राज में नहीं हुए। Every election there are variables, but the constant in Haryana is caste politics. It's always been that. Elections are fought and lost on the metrics of caste. 2019, Haryana saw a clean sweep by the BJP, winning 10 on 10 seats. In terms of demography, Haryana has 26% Jats, 22% scheduled castes, 16 to 17% Yadavs, 13 to 14% Brahmins, 5 to 7% Senis, 6 to 7% Muslims, 6 to 7% Gujars, 4 to 5% Rajputs, 5% Sikhs, and 4% Baniyas. Behind the clean sweep in 2019 by the BJP was a unique social engineering experiment it started in 2014 state elections. Give a voice to non-Jats, who had long been politically insignificant, leading to the 26% politically strong Jats feeling alienated and giving rise to the 35 versus 1 theory, pitching 35 communities in Haryana and isolating the Jats. The Congress, largely viewed as a party supported by the Jats, was reduced to 0 in 2019. Dipinder Hooda from the Congress lost Rohtak by a slim margin of 7,000 votes.
He's back in the hunt this time, not just for his own Lok Sabha seat of Rohtak that he won in 2014 and lost in 2019, but he and his father Bhupinder Singh Hooda hoping to lead the Congress to a win in state elections 3 months later. In Haryana, nothing's really complete. In a Nukkad Sabha of any political party, what you really do smell is a lot of bidi. Every Tau who's here will be smoking a bidi, and the name of every Chaudhary in the village needs to be taken before the main leader comes in. If you miss out one of the names of the men who are sitting right here, you're in trouble where that political party is concerned. Until the time the leader comes in, people from the village, the elderly, most of them, try their hands at the local Ragni. कैसे करेंगे बताओ? कैमरा पर्सन That's how you do elections in during the times of election. दीपिंदर जी कितने दूध के ग्लास पी लेते होंगे एक दिन में? यहाँ पे फूल की माला के साथ साथ मैं समझता हूँ जो 1 गिलास दूध भी मतलब 1-2 लीटर तो पी लेते होंगे एक दिन में? पहले तो पी लेते थे लेकिन अब थोड़ा सा उतना नहीं, लेकिन हाँ। दीपिंदर जी चुनाव कैसा चल रहा है? हाँ अच्छा चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार रोहतक से बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और केवल रोहतक ही नहीं, हरियाणा में 10 की 10 सीटों में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहने जा रहा है। बीच में ऐसा लग रहा था कि जो लीडरशिप का मुद्दा सेटल नहीं हो रहा था, पर इस बार लग रहा है इट्स इंटायरली हुड्डा साहब कॉल के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन टू दी एंड। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हम धन्यवाद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में मेरिट पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। देखिए, परफेक्ट तो कभी भी नहीं हो पाता राष्ट्रीय पार्टी में, मगर काफ़ी हद तक लोगों के अंदर ये संदेश गया है कि कांग्रेस पार्टी में टिकट बंटवारा है वो अच्छा हुआ है। जो बीच में चला आ रहा था कि कांग्रेस में जो हरियाणा यूनिट है काफ़ी गुट हैं, एक हुड्डा क्लैन है, एक जो सुरजेवाला जी है उनका क्लैन है, फिर एक किरण चौधरी का क्लैन है, अब सारा मतलब वो कुछ नहीं रहा है अभी। इज इट ऑल वन टुगेदर? कांग्रेस एकजुट है, सब अपने अपने लीडर्स हैं, सबका अपना अपना कांग्रेस पार्टी में स्थान है और सबका अपना मान सम्मान है, लेकिन कांग्रेस एकजुटता से हरियाणा में आगे बढ़ रही है। हरियाणा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ये मान लीजिए जाट हार्टलैंड है, फिर जो पूरी बेल्ट है जो जीटी करनाल की बेल्ट है पंचकुला तक जाती है, उसका कल्चर पॉलिटिक्स थोड़ा डिफरेंट है। इस बार मुद्दे सेम रहेंगे, असिमिलेट कर पाएंगे? हरियाणा के जो सेंट्रल मुद्दे हैं वो थीम पूरे प्रदेश में आपको रेजोनेट करते हैं। कौन से मुद्दे हैं वो आपको? हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देश में जी। बीजेपी की गवर्नमेंट ने ना काम किया, ना किसी का मान सम्मान किया, ना सुनवाई करी, हर वर्ग का अपमान किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका अपमान इस बीजेपी गवर्नमेंट ना किया हो। किसान आंदोलन की बात रही हो, हमारे कर्मचारियों पे लाठीचार्ज की बात रही हो, सरपंचों पे लाठीचार्ज की बात रही हो, हमारी बेटियों के साथ जो अपमानित पूरे देश के सामने किया गया था, चाहे वो बातें रही हो, तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ है। आज संविधान को तार तार करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज वो सारे मुद्दे पैन हरियाणा है। मिस गवर्नेंस का इशू पैन हरियाणा है और बदलाव की भावना भी पैन हरियाणा है। ये हरियाणा में यूजुअली बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है, इट इज़ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, पर पिछली बार हमने देखा था जेजेपी ने आपके मतलब एटलीस्ट जो स्टेट इलेक्शंस में थे उसमें काफ़ी वोट कटे थे। नहीं, हरियाणा में हमेशा रीजनल पार्टी रही थी जी। चौटाला INLD की रीजनल पार्टी हमेशा हरियाणा में रही, धीरे धीरे उनका डिक्लाइन हुआ है और कांग्रेस मजबूत हुई है। जो है मैं समझता हूँ कि आप इस बार आप देखना कि हरियाणा में डायरेक्ट कंटेस्ट है। दीपेंद्र जी, एक एक्सेप्टेंस है कहीं पे कि मे बी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि जो धरातल पे जो स्थिति है वो थोड़ा मिसकैलकुलेट हो गया। कांग्रेस थोड़ा पहले कर सकती थी, शुरू कर सकती थी। कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा लगातार भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। यही होता है, कांग्रेस पार्टी ने बड़े हौसले से चुनाव लड़ा है केंद्रीय स्तर पे।
राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गर जी के नेतृत्व में जी। कांग्रेस पार्टी ने बड़े हौसले से चुनाव लड़ा, नहीं तो पूरे देश की मीडिया और देश की परिस्थिति तो हमें कोई भी चांस देने के लिए तैयार नहीं थी। दीपेंद्र जी, 10 में से कितनी सीट आपको लग रहा है इस बार आ सकती हैं? मैं समझता हूं कि आश्चर्यचकित करने वाले चुनाव नतीजे सामने आएंगे। 10 की 10 सीट पर कांग्रेस के गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया दीपेंद्र जी, आप हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। Dipinder Hooda lost to Dr. Arvind Sharma from the Bharatiya Janata Party in 2019. This time, Dr. Arvind Sharma is battling once again the outsider tag, but has had the might of the Prime Minister, Home Minister and the party president JP Nadda campaign for him. डॉक्टर शर्मा जी, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव जो है आप देख रहे हैं, पूरा हरियाणा और खासकर रोहतक लोकसभा पूरे चुनावी मोड में उतर गया है। लेकिन अब तो पूरा माहौल एक ऐसा हो गया है चुनाव का। आप देखिए, मोदी जी आए डे बिफोर यस्टरडे, और उसके बाद यस्टरडे वाज डे फॉर अमित शाह जी। तो बहुत अच्छा मोदी जी का संदेश जो था वो सब के लिए बहुत अच्छा संदेश था। बहुत अच्छी अपील की, बहुत अच्छा लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया। इसी तरह से अमित शाह जी ने कल बहुत ठोक करके अमित शाह जी ने भी इसी तरह से किया। डॉक्टर साहब, इसको दूसरी तरह से भी देखने का है, जो कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी की ज़रूरत पड़ रही है, अमित शाह जी की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब सीट फंसी हुई है। वो इन चीज़ों को समझ नहीं सकते। वो इतने साल से अब ये लाइट एक बार आ जाए, आप दिखेंगे नहीं। लाइट आने दीजिए सर। फोन जला लेंगे। सारे ऑन कर लो अपने, सारे ऑन कर लो। चलो भाई, फोन से कर लेते हैं तब तक आ जाए। शानदार लाइट आई। बहुत देखो जी डॉक्टर शर्मा, वो इतने साल से उनका परिवार राजनीति में है, देश की राजनीति में और देश के निर्माण में कितना रोहतक इम्पोर्टेंस रखता है उसका भी नहीं पता उनको। वो कह रहे नड्डा जी आए, फलाना आए, ये आए, मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। इस इलाके की आदेश को आज़ाद करने में और देश की आज़ादी को बरकरार रखने में रोहतक लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका है। आप समझे? वो कहाँ समझ सकते हैं? उनको कुछ नहीं, उनको सिवाय राजनीति के, सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय दुष्प्रचार के, अफवाह फैलाने के उनको कुछ नहीं आता। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये घुसा हुआ है कि इलेक्शन जीतना है बाय हुक एंड क्रूक, किसी भी तरह से। इस बार आपको क्या लगता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत टाइट चुनाव है इस सीट पर? देखिए, ये बात भी जो टाइट वाला ये करते हैं ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये दुष्प्रचार करते हैं, छुप करके अफवाह फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। और आप रही बात मोदी जी की वेव की बात कर रहे हैं, अब की बार तो मोदी जी की सुनामी है। आपको बता दूं, पूरे देश में काम इतने किए हैं मोदी जी ने, ऐसे काम 2019 से 24 तक, ऐसे काम जो कभी हम सोचते थे कि ये काम हो भी सकते हैं, और वो काम करके दिखाए। गरीब आदमी, गरीब चाहे दलित है, बैकवर्ड है, ओबीसी है, चाहे जनरल जाति का गरीब है, वो इस बात को मानने लग गया है कि हमारा रुखाड़ा, हमारा अगर हितैषी है तो नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं। तो आपने गांव की बात की, गांव में चर्चा ये भी है कि बीजेपी ने महिला पहलवानों पे चुप्पी साधी, जो किसान आंदोलन हुआ उस पे चुप्पी साधी, और इसमें आक्रोश है गांव में। किसान मोदी जी से बेहद खुश है। 2014 में क्या भाव थे, अब 2024 में क्या भाव है? अब बाजरा उठा करके देख लें, बाजरे का 2014 में 500 से 700 रुपये तक, आज 2500 रुपये है। किसान खुश है, आप देखें। और मैं गारंटी से कहता हूं कि अब की बार किसान ठोक करके भारतीय जनता पार्टी कमल के बटन को दबाएगी। महिला पहलवानों पे जो चुप्पी साधी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद अलग दूसरी बॉडी बन गई है और वो मामला कोर्ट में चला गया था। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का, खासकर महिला पहलवानों का, खिलाड़ियों का हर तरीके से बहुत सम्मान करते हैं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। The political landscape is different this election. The farmers' agitation, the wrestlers' protests, the Agniveer scheme have all queered the political pitch here, clubbed with the highest rate of unemployment in the country at 29%. राम राम जी। तो थोड़ा सा उधर हो लोगे, मैं बैठ लूं ना तो बनना तो कोई नहीं, आप थोड़ा सा इधर बस इधर बैठ जाओ, फिर आ जाएगा। आ जाओ तब आप बैठ लो कोई ना जी। इस बार राजनीति कैसे देख रहे हो जी? राजनीति बदलाव की तरफ से जा रही है, पब्लिक सारी बदलाव कर रही है। अब की बार कांग्रेस और यो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन आने जा रहा है, सरकार बनाएगा। क्यों कांग्रेस चाह रहे हो जी? कोई भी चीज़ नहीं है, किसान परेशान है, पब्लिक स्टूडेंट परेशान है, गृहिणी परेशान है, जवान परेशान है। यहाँ की राजनीति क्या है कि 10 साल इन्होंने यहाँ हो गए तो हर काम के अंदर जो है ये तानाशाही कर रहे हैं। जैसे मतलब सर्विस थी, जो सर्विस ख़त्म कर दी, HKRN की जो है सिस्टम लागू कर दिया। मिलिट्री की थी जो फौज की नौकरी थी वो भी 4 साल की कर दी। अग्निवीर जिनका नाम दिया इन्होंने, क्योंकि अग्निवीर वाले को तो आजकल जो रिश्ता करने आते हैं तो ये सोचते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है अग्निवीर में, वो रिश्ते वाले भी भाग जाते हैं, भाई अग्निवीर वाला तो 4 साल के बाद घर आ जाएगा, क्या फ़ायदा है। यानी इन्होंने सिस्टम सारा ऐसा कर रखा है, किसान है उनके साथ भी दुर्व्यवहार है, यानी हर काम के अंदर तानाशाही इतनी है। रोजगार जो है बिल्कुल ही ख़त्म करते जा रहे हैं। PhD लगे हुए हैं वो भी किस में लगते हैं, D ग्रुप में लगते हैं। बदलाव चाह रहे हो जी? बहुत ज़्यादा बदलाव, पब्लिक सारी ही बदलाव चाहती है। तो ये जो चला जैसे 19 में हुआ था कि जाट एक तरफ हो लिए थे और बाकी कौम अलग तरफ, इस बार होगा क्या? जाट क्या, अब तो हर आदमी ही जो है ना बदलाव की तरफ है, जो नॉन जाट भी है जी। हाँ बिल्कुल है उसमें। राजनीति कैसे देख रहे हो? राजनीति में बेटा बदलाव चाहते हैं। 19 में किसके साथ थे जी? 19 में भी कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस के साथ ही थे। हाँ, मेरे बच्चे भाजपा के साथ थे। बच्चे भाजपा के साथ थे। हाँ, क्यों वो ये चाह रहे थे कि मोदी आए। हाँ। अब वो भी ऊब चुके हैं मोदी से। बच्चे नहीं चाह रहे इस बार? बच्चे भी नहीं जा रहे इस बार। क्या जो बाकी कौम है वो भी एक साथ हाँ, जाएंगे जी? दूसरे के जो मतबुद्धि के हैं वो भाजपा के साथ हैं, बाकी आम पब्लिक बदलाव सारी है। बस जी, आप बोलोगे जी ना? अच्छा चलो जी, राम राम जी। चलो भाई। At village Chang in Bhiwani, in a demography of a mix of Jats and Dalits, with a woman Sarpanch, Sudesh, there is a wedding in the family. राम राम जी, राम राम। बात कर ले, कौन सा गीत गा रहे थे? उसके पहले बटन वाला कौन सा गा रहे थे जी? वो हाँ बंदड़ा बोलते हैं। बंदड़ा शादी होती है ना जब हाँ। लड़के की, तब गाया जाता है वो। क्या मतलब हुआ जी गीत का? उसका मतलब ये है कि भाई शादी तय हो गई है, अब शादी की तैयारी शुरू कर दो। सरपंची क्यों संभाली जी? खुद सरपंची करते हो या हस्बैंड करे है? सब मिलके करते हैं। हस्बैंड और आप मिलके सरपंची करते हो? हस्बैंड भी और ससुर जी हैं और देवर हैं। क्या संभालते हो जी? क्या संभालते हो? अब जैसे गांव की महिलाओं की जो मेन है, कोई भी उनकी समस्या है, किसी चीज से रिलेटेड लगा लो, वो मेरे पास आती हैं। अगर कोई बाहर का झगड़ा है, आपसी झगड़ा है या कोई और बात है, वो ससुर जी के पास आते हैं। साइन तो आपको ही करना पड़े है। साइन भी, और ये होता है ना कि भाई सरपंच बना दिया सिर्फ नाम का, आपका नाम चल रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पंचपति है, ऐसा नहीं है। सरपंच प्रतिनिधि है वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सब वो हैं और मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। मेरे को हर चीज में साथ रखते हैं। क्या दिक्कतें क्या हैं जी इस गांव में? तो अभी पानी की समस्या चल रही है। पानी की चल रही है? हाँ जी। अब कहीं से गांव के किसी हिस्से से आती हैं, वार्ड नंबर 1 से 2 से, कि हमारे पानी नहीं है पीने का। हम उनको एश्योर कर रहे हैं कि भाई आप 2-3 दिन तक वेट करो, इस समस्या का हल हो जाए। हल कर देती हैं समस्या या ना करें हैं? काम कर देती हैं? काम करती हैं कि ना करें हैं? ना करें ना, आपका तो इनका तो नहीं करा। ये ना शादी में आई हुई है, यहाँ गेस्ट नहीं है, अभी शादी है।
इधर देवर की और ये उसमें आई हुई है। ये तो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं, काम को नहीं करा सरपंच ने, सारे काम करे हैं, है दावत भी नहीं दी, नहीं लाइट की बोल रहे हैं, लाइट भी नहीं है। समस्या चलिए वोट गे रहे हो सारे, क्या सोच के वोट गे रहे हो? उसकी बात तो यही है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई ज्यादा लग रही है। हाँ महंगाई है जो मेन है, गरीब आदमी है बेचारा गरीब होता जा रहा है। हाँ हम तो इसका क्या सुदेश का जो सुदेश का है और के मार सरपंचनी के मानना है हमें सरपंच की मानोगे और के क्या है मुद्दा? मुद्दा तो जी लाइट छोड़ दे बस। अभी गर्मियों में तो मैम यही रहता है मेन तो लाइट महंगाई कर रखी है, पानी का ही महंगाई भी और एक ये बेरोजगारी भी मैम बहुत। बेरोजगारी आपको तो मिल रखा रोजगार, सरपंच बैठी हुई हो। मेरे अकेले से क्या होगा मैम, और भी तो है गांव में। बदलाव चाह रहे हो सारे? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गाँव वाले हैं आसपास के, अब आपको देख के आ रहे। Outside we meet Pradeep Kumar, the Sarpanch Pati, a term casually used for the husband of the Sarpanch who is a woman, wherein the Sarpanch Pati is the real deal, the Sarpanch, a rubber stamp. There has been no water in the village for a week now, and this is the work of the Sarpanch Pati, Pradeep Kumar, and not his Patni, Sudesh, to sort out. रेडी? यहाँ का राजनीति कैसे देख रहे हैं? सभी का एक मेन मुद्दा तो है कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सबसे पहली बात। दूसरा, लोगों के मन में आपस में मतभेद ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में जाति धर्म की राजनीति ज़्यादा हो रही है। मैं किसी एक विशेष दल की बात नहीं कर रहा, सभी इसमें बराबर हैं। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सारे जातियों को धर्मों को आगे रख रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में खटास आ गया है। रही बात मुद्दों की, सबसे बड़ा मुद्दा अभी अगर ग्राम स्तर की हम बात करें तो मेनली अभी इन दिनों में समस्या ज़्यादा है पानी की। वाटर सप्लाई की समस्या आ रही है लोगों के पास, 10-10, 15-15 दिन एक घर में पानी नहीं आ रहा। वोट की जब राजनीति होती है तो वोट पे ध्यान देते हैं, ना कि नहीं तो एक इशू ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। The good in my home state is immense, but there is also denial. Denial in accepting its deep-rooted patriarchy. Patriarchy, a term that in Haryana goes by the local word Ijjat. Back to the main city of Rohtak, and this is where the political divide is well entrenched. The Jats and the Baniyas, the farmers and the traders, the Congresses and the Bhajpais. नमस्कार जी, नमस्कार। यहाँ की राजनीति कैसे देखते हैं? शुरू से बताएं। हरियाणा की राजनीति तो शुरुआत ही रोहतक से होती है। बीजेपी से खुश है? ये इस टाइम तो बीजेपी ने हमारे रोहतक को बिल्कुल चार चांद लगाए हुए हैं, हर काम में, हर वर्ग में। 10 साल हो गए तो 10 साल में उनका प्रभाव तो अब नेचुरली लोगों के ऊपर छाया हुआ है। तो इस बार बदलाव नहीं चाहते? नहीं, मोदी जी के लिए बदलाव की तो सोच भी नहीं सकते। वो तो राष्ट्र हित की वोट है, कोई हरियाणा की वोट नहीं है, रोहतक की वोट नहीं है। ये तो जब से मोदी जी आए हैं हमारे को तो यही नज़र आता है, इनके अलावा कोई नज़र ही नहीं आता। और जो काम मोदी जी ने करे हैं राष्ट्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, वो ऐसा काम शायद ना कोई नेता आएगा ना कोई नेता बनेगा। तो कैंडिडेट मायने रखता है आपके? नहीं, कोई कैंडिडेट मायने नहीं रखता, कोई नहीं, ओनली फॉर मोदी, सिर्फ मोदी जी मायने रखते हैं। बिल्कुल मोदी जी। इस बार क्या मुद्दे होंगे आपके वोट के लिए? मुद्दे मैडम बीजेपी को ही देंगे वोट, क्योंकि इनके लिए क्या है, इनके राज्य में जो पड़ेगा वही बढ़ेगा। मोदी जी के नाम, बस मोदी जी के नाम, कैंडिडेट नहीं देखते हैं। क्या नहीं देखते? मोदी जी हमें बहुत पसंद है, मोदी जी और योगी जी दोनों पसंद है। योगी जी पसंद है। हरियाणा में दो भगवान है जी, योगी जी और मोदी जी दोनों भगवान है। भगवान है, भगवान है। हाँ जी। आज इन्होंने थोड़ी देर पहले एक राग से अटेंड करते हो, क्या यूज़ किया था लोगों, हम सुन रहे थे जब आपकी मीटिंग में, पूछिए। बताएं। जिस प्रकार सब हम काम में जुटे रहते हैं, प्रचार में इस तरह से नहीं जा पाते, तो जो भी हमारे पास ग्राहक आते हैं हमारी कोशिश रहती है कि उनसे दिल से कन्विंस करें कि मोदी जी को वोट करें। मोदी हर किसी के दिलों में बसता है। चलिए मैं ग्राहक हूँ, कन्विंस करिए मुझे, कैसे कन्विंस करते हैं? दीदी आप लीजिए सूट, भाजपा का बटन दबाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए। अरे आप तो मुझे कन्विंस कर आपको क्या नहीं मिला, मोदी जी ने क्या नहीं दिया? जो आज जिस भारत में हम जी रहे हैं, आपने कल्पना करी थी कभी एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से दिखाते ही हम
पैसे डाल देंगे। जिस तरह डिजिटल भारत को उन्होंने लाए, शिक्षा पर काम किया, अब आप देखते हो हाईवे दिल्ली हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। मुझे 3 घंटे लगे हैं दिल्ली से आने नहीं में। नहीं मैम 3 घंटे आप रास्ते में सर्वे करते आए होगे ना, 3 घंटे। तो दिल से हम जुड़े हुए हैं मोदी जी के साथ, हर तरह से, सभी तरह मैं से। सोचूंगी, आपने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, मैं सोचूंगी। आपका तो प्रोफेशन है, आपको कैसे कन्विंस कर सकते हैं। हमारे पास भोले भाले ग्राहक आते हैं, उनको कह सकते हैं, आपको नहीं कह सकते। मोदी जी की लहर है, मोदी जी ही आएंगे और 400 पार लाएंगे। चलिए देखेंगे, 4 जून बताएगा। बहुत शुक्रिया। It is a battle of two narratives, where one hopes political history repeats itself, while the other attempts to change the hand of history.